Thank you very much, Rajendra Bhai, for your very warm and loving welcome as always. भाई राजेंद्र, हमेशा की तरह है आपके प्यार भरे और उस अभिवादन के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। Thank you for a very warm introduction you gave regarding the subject matter. और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस विषय पर हम लोग सीख रहे हैं उसका परिचय आपने दिया। That is very heartening and very encouraging. So thank you for that, brother. और भाई आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो परिचय दिया है वो बड़े उत्साह का कारण बना है। I want to thank the Lord. I want to thank Deepu. I want to thank the brethren who are responsible for the Bandilkan Gospel Outreach work for having given me this platform to study and teach the word to every one of you. आप सबके लिए वचन सिखाने का मुझे ये अवसर प्रदान करने वाले बुंदेलखंड गॉस्पेल आउटरीच टीम मिनिस्ट्री के संचालकों को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये अवसर दिया। And thank you, Deepu, for being available because I know you are quite busy. You're traveling, and I heard that you just rushed back for helping in the translation. And thank you for making yourself available. God will bless you immensely. Thank you, Uncle. It is my always an honor and a pleasure to me to be available for Lord's work and Lord's ministry that He has given to me. It's not my own ability. It is God-given gift, so I have to use it. I am responsible for that. So I'm very glad to be available always to do this work. Thank you. Thank you. Thank you very much. All right. Hopefully, God willing, we should complete the study of Psalm 34 today. और आप बड़ी उम्मीद है कि आज बड़ी आशा में कि आज भजन संहिता 34 का अध्ययन को हम लोग आज समाप्त कर पाएंगे। Let's commence by reading Psalm 34 verses 15, 16 and 17. 15, 16, 17 भजन संहिता 34 का पढ़ के हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। The face of Yahweh is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. The righteous cry out and Yahweh hears, and He rescues them from all their troubles. Yahweh is close to the brokenhearted, and He saves those who are crushed in spirit. Thank you very much, Deepu, for reading it in Hindi and English as well. And thank you very much for doing that. Now, this evening, while I was preparing myself to present the word to you, I was wondering why we take so much of time in every psalm that we have meditated so far. और इस भजन को जब मैं तैयारी कर रहा था उसी समय पर मेरे मन में विचार आया और मैं सोच रहा था कि आखिर हम लोग क्यों इन भजनों का अध्ययन करते समय इतना विस्तार से इतना समय लेकर के क्यों हमको अध्ययन कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? Let me ask this question once again so that I want every one of you to hear it. I want some of you to give me a response. Now, the question is, why are we spending so much of time in every psalm, in learning every psalm? Why are we spending so much of time? एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है, ध्यान से सुनिएगा। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं और मैं चाहूंगा आप में से अपना अपना माइक खोल करके आप जवाब देंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। सवाल ये है कि आखिर हम लोग क्यों भजनों का अध्ययन इतने विस्तार रीति से क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? कोई भी बता सकते हैं अपना माइक खोल करके, जो जिनका अच्छा कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए। Okay, to understand the will of God. Good answer. बहुत अच्छा जवाब। और
परमेश्वर का वचन भी कहता है वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, इसलिए उसके परम प्रधान की छाई हुई स्थान में हम बैठकर परमेश्वर के वचन को सीखते रहे, भजनों की सेवा करते रहे। Deepu, can you translate that for me? Oh, that is the first word he has read. The God is my refuge and my fortress. Okay. So that's the whole word he read. Yeah, see, to understand the will of God, there are many scripture portions we can read, is it not? Now, why should we spend so much of time only in the Psalms? अभी देखिए, हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए बाइबल में और भी तो वचन हैं और भी भाग हैं, लेकिन आखिर क्यों भजनों का जो सैर करने के लिए, वह भजनों का भजन संहिता से उन भजनों का हम विस्तार रूप से इतना गहरा समय गहराई में जाकर बहुत समय बिता करके उसका अध्ययन कर रहे हैं, क्यों? All the Psalms we have been studying, I'm just giving you, I'm just tickling your mind. Now, all the Psalms we have studied is about David, is it not? So why do we have to spend so much of time reading about these Psalms? You have to think and answer. आपको देखिए जवाब देना है और आपको सोचना है। अभी तक जितने भी भजन हमने अध्ययन किए हैं, जिन पर समय बिताया है, अधिकांश भजनों में हमने दाऊद के जीवनी को देखा है और सीखा है। अधिकांश दाऊद से संबंधित उन्हीं भजनों को अभी तक हमने अध्ययन किया है। अभी हम कितना आपको सोचना है, अपने मन को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिवर्स गियर में लेकर के जाइए और सोच करके बताइए कि हम इतना ज्यादा समय एक एक वचन को, एक एक भजन को इतना समय लेते हैं, इतना गहराई में जाकर के, और हम क्यों इतना विस्तार रूप से इसका अध्ययन कर रहे हैं? आप लोग बताइएगा। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित तो है ना? मगरिता सिस्टर हैं, जितेंद्र भाई हैं। अगर आप लोगों को अच्छा कनेक्टिविटी है तो आप लोग वीडियो भी खोल सकते हैं, तो ज्यादा उत्तम रहेगा। अंजू बहन, आपका नेटवर्क बहुत कट रहा है, दोबारा प्रयास करें। हाँ, देखिए हमारी आंटी जी ने देखिए खोल लिया है है ना? हमारी आंटी आज जुड़ी हुई हैं केरल से, और आंटी जी ने वीडियो खोला। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। और भी भाई बहन आरती बहन नहीं है? Your answer will depend on what you have learned so far. अभी देखिए, अभी तक हमने जो सीखा है उसी के आधारित आपका जवाब मिलेगा। हम क्यों भजन संहिता इतने विस्तार रूप से सीख रहे हैं, क्यों इतने विस्तार रूप से उसका सैर कर रहे हैं भजनों का? मुझे सिर्फ एक और दो रेस्पॉन्स चाहिए बस। आप एक और दो जवाब ही दे सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आगे बढ़ने के लिए। अंजू बहन जवाब दे रही हैं, लेकिन उनका इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। बहन, आपका आवाज क्रैक हो रहा है, कट रहा है। जैसे कि हमने दाऊद राजा के जीवन से देखा कि काफी कठिनाइयों से उन्होंने अपने जीवन को बिताया और परमेश्वर को हर एक प्रकार से धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े हैं वो, और हर प्रकार से किसी प्रकार में उन्होंने परमेश्वर का मतलब अपने आप का भरोसा नहीं छोड़ा, परमेश्वर का भरोसा बनाए रखा। इस बात को भी हम देख सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। She can be given more than full marks. Now, if the full mark is 100, she can be given 200. एग्जैक्टली अंकल। बहुत खूब जवाब दिया आपने। ओके, आपने बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया, और आपको 200 मार्क भी दे सकते हैं। Two answers she gave. One is she said belief in God. दाऊद ने लिखा है कि आपने दुनिया छोड़ देगा लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ा, उसका भय मानो हमेशा। Very good, excellent. बहुत अच्छा, excellent, very good.
Very good. So the two answers that I got is, one is to thank God, and the second is to believe in this God. Now, the reason I asked you that question is what I'm going to tell you now. अभी देखिए, जो बहन ने जवाब दिए हैं वो दो जवाब मिले हुए हैं। पहला जवाब है कि परमेश्वर का धन्यवाद देना सीखें, दूसरा परमेश्वर में विश्वास रखें। अभी जो सवाल मैंने क्यों पूछा उसका कारण मैं अभी आपको बता रहा हूं। You see, the answer is there cannot be any person who has undergone greater difficulties than David. Right from his conception in the womb, right from that time till he went and sat on the throne when he was 30 years, 30 years old, till that time, the kind of difficulties he has undergone, I don't think any believer would have undergone. अभी देखिए, दाऊद के जीवन से जब हम देखें, हम जितने भी विश्वासी लोग हैं, आज तक जितने भी विश्वासी लोग इस दुनिया में हैं, मसीहत में हैं, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई भी विश्वासी जितने कष्ट और पीड़ा से और घृणा से और तृष्णा से हो करके जिंदगी की कड़वाहट को महसूस करते हुए दाऊद गुजरा है। दाऊद के जन्म जैसे ही उसने गर्भ में आया, तब से लेकर के उसकी युवावस्था तक, जब तक वो 30 साल का ना हुआ, तब तक हम देखते हैं कि दाऊद इतने इतने कष्टों से, मुसीबतों से, परीक्षाओं से, जोखिमों से होकर के गुजरा। मैं नहीं समझता ऐसा कोई भी विश्वासी के जीवन में घटित हुआ हो। I hope you understood him. That were the thoughts that came to my mind when I was preparing myself to be with you this evening. I was wondering, why are we spending so much of time? And the only thought which came to me is, there's so much that we can learn from the life of David, which by itself is an encouragement for us to carry on in this world. और जो सवाल मेरे मन में आया कि आखिर क्यों हम इतना ज्यादा समय बिता करके भजनों का माध्यम से शेयर कर रहे हैं, उसका जवाब मेरे मन में आया कि दाऊद के जीवन से हम ऐसे ऐसे तथ्यों को और इतना बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस का कारण बनता है। You see, whenever in our assembly, in our churches, when we hear testimony, when there's a testimony time can be on Sundays, it can be in the cottage meeting, it can be on 31st night, any other occasion. When there is a testimony time, when one brother or sister is sharing her or his testimony, it is always an encouragement to us, is it not? यस, और मेरे प्यारो, जिस प्रकार से हम लोग कलीसियाओं में क्या देखते हैं, अक्सर कलीसिया के समय में क्या होता है, गवाही का टाइम रहता है। गवाही का टाइम कॉटेज मीटिंग में हो सकता है, गवाही का टाइम कलीसिया में हो सकता है, गवाही का टाइम ऐसे 31 दिसंबर की रात को हो सकता है। इत्यादि समयों में जब हम गवाही देते हैं, तो मेरे प्यारों, जो हम बाकी लोग सुनने वाले हैं, जिनके बीच में खड़े होकर के हम गवाही देते हैं, वो गवाही दूसरों के जीवन से को छू लेती है और उनको आगे बढ़ने के लिए एक एनकरेजमेंट बनता है, एक उत्साह का कारण बनता है। That is exactly what is happening when we study the Psalms, because what we learn from the Psalms of David is a gavayon for us to carry on in this wilderness journey. इसलिए मेरे प्यारों, हम इस चीज को देखते हैं कि उसी प्रकार से दाऊद का जीवन में भी उन ऐसी गवाहियों को हम देख सकते हैं जो दाऊद के जीवन में घट करके आज हमारे लिए वो उत्साह और प्रेरणा का कारण बनी है, एनकरेजमेंट का कारण बनती है, जिससे हम आगे बढ़ जाते हैं। That is why we must thank God for people like David. We must thank God for the Psalms. We must thank God above everything else for everything that He's doing in our life. इसीलिए मेरे प्यारों, हमारे जीवन में जो कुछ है और जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं, हमें हर एक बात में, हर समय में प्रभु को, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना है। All right. So the answer to the question that I asked, the first sister who answered, she answered it
beautifully. So we will move on now. We read verses 15, 16, and 17. Now I want to focus one aspect of verse 15. और अभी जो बहन ने जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, इसलिए मैं उस जवाब से संतुष्ट हूं और प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। अभी हमने 15, 16, 17 आयत को भजन संहिता 34 का पढ़ा है। अभी मैं विशेष बात को जो वचन 15 में है उस पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं। सभी लोग अपना अपना बाइबल ले लीजिए प्लीज। आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप के पास बाइबल है, पेन कॉपी है, जरूर आप उठा करके देखिए, और जो वचन हम पढ़ते हैं उसमें आप भी उसमें पढ़िएगा अपनी बाइबल में। और Now, अगर आप खोल के माइक पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। all right. Now let's read verse 15 once again. When you read it, please underline there are two body parts that are mentioned in this verse. और Can I read? हम अभी रुको, ये जो 15 आयत है उस आयत को हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है, अपनी पेन को लेकर के उस वचन में दो मुख्य वाक्य हैं, है ना, मुख्य वाक्य जिनको आप अंडरलाइन कीजिएगा जब इस वचन को पढ़ते हैं, और हम उन दो वाक्यों को देखने वाले इस वचन के अंदर। अब पढ़िए भैया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Thank you, brother. You बहुत see, बहुत धन्यवाद। there are two body parts that are mentioned in this verse, is it not? अभी देखिए इस वचन के अंदर हमने क्या पढ़ा। अभी हमारे शरीर के दो ऐसे अंग हैं जिनको इस वचन में बोला गया है, लिखा गया है। Which is that? Ask them that. आप बता सकते हैं वो कौन कौन से हैं? कोई भी बता सकते हैं माइक खोल करके। हमारे शरीर के दो अंग इस वचन में उनका नाम लिया गया है। आंख और कान। बहुत अच्छा। Yes, eyes and ears. Wonderful, wonderful. We all know about God, but we have not seen God, haven't we? मेरे प्यारो देखिए सच्चाई यहाँ पर क्या है। हम सब परमेश्वर को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें से किसी की भी आंखों ने परमेश्वर को नहीं देखा। Has anyone physically seen how God is? Through the spiritual eyes we can see God, but physically has any one of us seen God? शारीरिक रूप से क्या आज तक कोई है जिसने अपनी आंखों से प्रभु को देखा है? हमें से कोई है ऐसा? आत्मिक रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हम जी नहीं देखा है? नहीं। But this verse, David is talking about this verse as if he has seen this God physically himself. लेकिन मेरे प्यारो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? दाऊद राजा इस वचन को इस प्रकार से लिख रहे हैं जैसे कि मानो दाऊद ने स्वयं परमेश्वर के अपनी खुद की आंखों से देखा हो। He's talking as if he's seen two parts of the body of God. वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानो उसने, दाऊद ने परमेश्वर के शरीर के दो अंगों को देखा हो। One is the eyes and the other is the ears of the Lord. पहला है आंख और दूसरा है परमेश्वर का कान। You see, I am not very sure at this point in time. I have to do some research. I am not very sure at this point in time whether David did see God physically. और मैं अभी इस क्षण इस बात में सुनिश्चित नहीं हूं कि वास्तव में दाऊद ने परमेश्वर को शारीरिक रूप से देखा या नहीं देखा। इसके पीछे मुझे तकनीकी खोज करनी पड़ेगी। But through his spiritual eyes, through his understanding of God, through his communication and fellowship and union he has had with God, he is able to distinctly talk to us about the eyes and the ears of God. और लेकिन मेरे प्यारो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि बड़े विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि दाऊद राजा ने
आत्मिक उसकी आत्मिक आंखों से और आत्मिक अनुभवों से उसने परमेश्वर को, उसकी आंखों को देखा है, उसके कान को हमारी ओर लगे हुए देखा है। You see, the example that comes to my mind is when a man and a woman, they fall in love, all right? They have not seen each other, but they keep talking with each other. Okay. Now they keep talking various matters. Both of them are planned to get married. So they keep talking about many things which they are planning. Now, by the time they meet each other, just by their communication with each other, they get to know many things physically about each other, even without seeing one another. Is that not? देखिए मेरे प्यारों, एक उदाहरण मेरे मन में आता है। अभी देखिए वर्तमान में क्या हो रहा है कि एक स्त्री और एक पुरुष जब एक दूसरे के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, क्या होता है उस समय उन्होंने शारीरिक रूप से एक दूसरे को नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ बात करते हुए सिर्फ वो सुनते हैं, और सुनते सुनते क्या होता है कि वो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी योजनाओं की योजना बनाते हैं, चर्चा करते हैं, और उनका जब तक शादी का समय आता है, उनके मिलने का समय आता है, तब तक हम इस बात को पाते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में शारीरिक रूप से बहुत कुछ जान जाते हैं You say, बिना देखे। जी yeah, so don't compare yourself in the present times, because in the present times you've got mobiles, you've got pictures, photographs which you can send in exchange. I'm not referring to, I'm referring to David's period, right? The example that I gave you is relating to David's period of time. If you think of a man and a woman who are going to get married during the time of David, just by communicating with each other, they would have got to understand more about each other even before they physically saw. Now, that exactly and more than that is through the spiritual eyes that David is able to see about the God whom he worshipped. और इस बात को देखिए मेरे प्यारो, आप लोगों से मेरा अनुरोध है, वर्तमान की परिस्थिति में इस आधुनिक जगत से अपने आप की तुलना ना कीजिएगा, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं वो बात दाऊद के जमाने की बात है। आज के जमाने में क्या है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप्स हैं, और कई प्रकार के ऐसी एप्लीकेशन है जिनके जरिए से वीडियो कॉल की जा सकती है, फोटोग्राफ्स भेजे जा सकते हैं। लेकिन जो मैं बात की है, मैंने उदाहरण दिया है आपको, वो उदाहरण क्या है, वो उदाहरण दाऊद के जमाने का है। और उस जमाने में क्या होता था कि जो भी लोग प्रेम प्रसंग में पड़ते थे, एक दूसरे को मिलने से पहले उन बहुत सी बातें करते हैं, और उनके मिलने के दिन तक केवल सुनने से मात्र से ही बहुत कुछ उनके शारीरिक अवस्था के बारे में जान लेते हैं। You see, David was deeply loved his God. He was admiring God. He was in deep devotion for God. And so, through that communication, communion with an unseen God, he was able to understand about the two parts of God's body, which is the eyes and the ears. And that is what he's written here. लेकिन मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखते हैं कि दाऊद के जीवन से क्या देखते हैं कि दाऊद ने आत्मिक रूप से परमेश्वर को इसीलिए देख पाया क्योंकि परमेश्वर के साथ दाऊद बहुत ही गहरे प्रेम में पड़ गया था। परमेश्वर से बहुत गहराई से वो प्रेम रखता था। इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर की वो प्रशंसा करता है। किस तरह से प्रशंसा करता है? वो कहता है कि वो उसके कान मानो उसने देख लिए हों, उसकी आंख मानो उसने देख लिया हो जीवित परमेश्वर की। You see, brothers and sisters, when you love your husbands, you love your wives, you love your children so deeply, so intently,
you are able to speak on behalf of them, and you can tell others, oh, I know my husband very well, oh, I know my wife very well, oh, I know my children very well. This is exactly what they will do at this time. If this is what the problem is, this is how they will handle it. You see, they know them so well, and that is how intimate David was with God. और इस बात को देखिए मेरे प्यारो कि दाऊद परमेश्वर के कितने नजदीक है। और भी प्रायोगिक उदाहरण हमारे सामने हैं। जब हम अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं, या पत्नी पति से प्रेम रखती है, या बच्चे माँ बाप से प्रेम रखते हैं, तो क्या होता है कि इतना गहरा प्रेम होते हैं। तो जब एक समय ऐसा आता है तो हम उनकी अनुपस्थिति में, मान के चलो, पत्नी इस बात को कह सकती है, नहीं, मैं जानती हूँ मेरा पति मुझसे कितना प्रेम करता है, मैं जानती हूँ मेरा पति कैसा है। बच्चे कह सकते हैं, मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप कैसे हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो दाऊद इस बात को प्रकट कर रहा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर कैसा है, वो क्या करता है। You see, David now is very confirmedly speaking to me and to every one of you who are on the Zoom this evening. David is speaking, and what is he saying? The eyes of the Lord are upon the righteous. Righteous means believers. You and I are believers. The eyes of the Lord are upon every believer. And then he says, his ears are open to every believer who's crying. और देखिए मेरे प्यारो, इसीलिए दाऊद राजा क्या कहता है, बड़े ही उत्साह के साथ में, मानो वो परमेश्वर को उसने देख लिया हो, वो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप के बारे में वो कहता है, वो परमेश्वर यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। धर्मी कौन है? हम विश्वासी लोग हैं। इसका मतलब हमारे विश्वासियों के ऊपर यहोवा की आंखें लगी रहती हैं, और जो दुहाई देने वालों की ओर क्या है, उसके कान लगे रहते हैं सुनने के लिए। You see, I do not know if you heard about a person called George Muller. George Muller was a German, but he lived in England for most part of his life, and he lived during the 18th century. और मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना या नहीं सुना कि जॉर्ज मूलर जो सिद्धांतिक रूप से हम देखें, अब तो बुनियादी रूप से वो जर्मन के थे, लेकिन उनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता है। And he lived for 93 years. और वो 93 वर्ष तक जीवित रहे। He had no salary. उनका कोई सैलरी नहीं मिलता था। He relied purely on God to supply the money and food needed for the orphanages. Now, George Muller is known for orphanages, building orphanages that can take up to 10,000 children. That is how huge George Muller's orphanages are. So without a salary, without a regular income, you know, George Muller depended on God for provision of everything which every orphanage under his command needed. अभी देखिए, जॉर्ज मूलर किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जॉर्ज मूलर अनाथों और अनाथालयों के लिए सर्वाधिक जाना और समर्पण के साथ जाना जाने वाला एक व्यक्ति है। और जॉर्ज मूलर का इसी प्रकार उनका बोझ था कि जो यद्यपि इतने बड़े बड़े अनाथालयों को वो बनवाते थे कि एक बार में एक जगह पर 10,000 तक जो अनाथों को वहां पर पनाह दी जा सकती है, और उसको कोई सैलरी नहीं थी। उनको भरण पोषण के लिए, उनकी सब जरूरतों के लिए, पता है वो किस पर निर्भर रहता था? पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित रहते थे। You see, these orphans either had no parents or they either had no homes. So he started loving such children because he loved the Lord Jesus Christ. और क्योंकि वो यीशु मसीह से प्रेम रखते थे, इसीलिए वो क्या किए हैं, वो जो
अनाथ लोग हैं। अनाथ लोग कौन होते हैं? या तो उनके माता पिता ना हो उन बच्चों के, या उनके पास कोई घर ना हो रहने के लिए, उनको वो प्रेम करना आरंभ कर दे, क्योंकि वो प्रभु यीशु से प्रेम रखते थे। So, to motivate this man's faith, the kind of faith he had in God with no regular source of income, yet to manage thousands of orphan children, he had a text, which means he had a verse on his table, which gave him a lot of confidence every day in his faith in God. और मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं, यद्यपि इन हजारों बच्चों की प्रत्येक दिन की तीनों टाइम की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिसके पास पैसे का कोई स्रोत ना होते हुए भी परमेश्वर पर वो आश्रित रहे। और जब वो अपने ऑफिस में बैठते थे, उनके सामने एक ऐसा बाइबल का वचन लिखा हुआ रखे रहते थे जो उनको हर दिन हर घड़ी एक उत्साह देते थे। Let's read 1 Peter chapter 5 and verse 7. पहला पत्रस 5:7 हम लोग पढ़ लेते हैं। 1 Peter 5 and verse 7. पहला पत्रस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Thank you, sister. You see, this is the Bible verse, but the text which George Muller had on his table, is based on this verse. And you know what the text was? It says, it matters to God about you, which means God knows about you. Everything concerning you, God knows. That is the text he had on his table. और उनके जो टेबल के सामने जब वो बैठते थे, इस प्रकार से एक पटिया पर लिखा हुआ रखा था कि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, मतलब परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या जरूरत है, कब जरूरत है और कितनी जरूरत है, इस बात को जानता है और वो उसको देने में सक्षम है। इसीलिए ये वचन वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, इसका मतलब परमेश्वर देगा। You see, every time the orphanages needed some help, they needed money, they needed food, they needed provisions, this text used to be of his support. When he reads it, he used to be assured, oh yes, God is with me. I matter to God, so God will take care of me. This is how his whole life he lived without depending on any income. और मेरे प्यारों, हम उस व्यक्ति के जीवन से इसी बात को देखते हैं। दाऊद को जॉर्ज मूलर को उसके जीवन में यही वचन बड़ा सामर्थ्य दिया, हिम्मत दिया, बल दिया कि परमेश्वर को मेरा ध्यान है। यद्यपि मेरे पास कोई जो आय का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन परमेश्वर को ध्यान है, इन बच्चों के लिए क्या जरूरत है वो देगा, उसको ध्यान है। यही बात जॉर्ज मूलर को विश्वास में बनाए रखी और उसको आगे ले गई। At 93 years old, when he was about to die, his final words of testimony was this. और जब वो 93 वर्ष की उम्र में जब वो मरने वाले थे, तब आखिरी समय में जब वो गवाही दे रहे थे, आखिरी वचन उनके ये थे, He said, the Lord has never failed to supply all my needs. उसके आखिरी शब्द इस प्रकार से थे कि परमेश्वर आज तक मेरी सब जरूरतों को पूरा करने में असफल नहीं हुए। I do not know if I mentioned one example of George Muller here with you or the other group. I don't remember that, but this example is ever fresh in my mind. और मुझे इस बात को पता नहीं है कि मैंने ये जो उदाहरण है आपको
के साथ साझा किया या नहीं किया, या दूसरे समूह के लोगों के साथ किया है, लेकिन ये जो उदाहरण है मेरे मन में हमेशा ताजगी भर के उभर के आने वाला उदाहरणों में से एक है, It's about George Muller. और ये जॉर्ज मुलर के बारे में है। All right. So listen, I'll try and finish it quickly because I want to finish this study today. Now, one day when George Muller got up, his children came, sat at the dining table. All the children got dressed up, ready to go to school. They came and sat at the table. On the table, there were empty plates, empty mugs. The kitchen was empty. The storeroom was empty. There was no food to be given to the children, but the children were sitting at the breakfast table. आप एक दिन की ऐसी घटना घटित हुई है। एक दिन ऐसा हुआ कि जो उस अनाथालय के बच्चे थे वो सब के सब, उनके हाथ में खाली प्लेट है, खाली गिलास है, और वो उस टेबल पर बैठे हुए हैं। उनके साथ उनके पास खाने के लिए, नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है, किचन भी खाली है, लेकिन सब बच्चे उस टेबल पर बैठे हुए हैं नाश्ते करने के लिए। And George Muller was on his knees right from the previous night. और जो जॉर्ज मुलर है वो पिछली रात्रि से घुटनों के बल प्रार्थना वो करने में लगा हुआ था। In his bedroom, on his bed, on his knees, he has been praying. उसके बिस्तर वाले रूम में वो अकेला रह करके प्रार्थना कर रहा था। At about 8 o'clock, there was a knock on the door. 8 बजे के आसपास एक किसी ने द्वार आकर के खटखटाया। So when the officials of the orphanage opened the door, they saw one baker, the city's biggest baker. He was standing at the door. और जब उस ऑर्फनेज के जो अनाथालय के जो लोग थे, उन्होंने जब उस गेट को खोला तो उस द्वार पर उस शहर के सबसे बड़ा जो बेकर है उसको खड़े हुए पाया। Baker means the bakery wala. Bakery wala, you will have roti and cakes and all that which they make. No, roti wala, he was standing there. ओके, वो जो ब्रेड वगैरह बेचता है, बेकरी वाला वहां पर खड़ा हुआ मिला। He's got his own factory, so he said, I want to meet George Muller. उसने इस प्रकार से कहा, जैसे वो आया उसने कहा मैं जॉर्ज मुलर से मिलना चाहता हूँ। So George Muller came out of his bedroom, he came to the door, and the baker told George Muller the following thing. और जॉर्ज मुलर अपने रूम से बाहर आकर के उस बेकर के पास, जो बेकरी वाले के पास में आए, और बेकरी वाले से इस प्रकार से, बेकरी वाले ने इस प्रकार से कहा जॉर्ज मुलर से। The baker told George Muller, 3 o'clock, the Lord woke me up because he is a believer. He was a God-fearing man. He says, I could not sleep after 3. The Lord woke me up, and the Lord said, bake as much bread as possible and take it to the orphanage of George Muller. This happened at 3 o'clock that morning. और वो जॉर्ज मुलर से उस बेकरी वाले ने कहा, सुनिए, वो एक विश्वासी था, इसलिए वो उस प्रकार से कहने लगा, प्रिय जॉर्ज मुलर, आज रात्रि को मैं 3 बजे से सो नहीं पाया, परमेश्वर ने मुझे जगाया और इस प्रकार से कहा, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा तुम जो ब्रेड है उसको पकाओ और उसको ले जा करके जॉर्ज मुलर को जो अनाथालय में जा करके दे आओ। And he brought so much of bread that morning and gave it to the orphanage of George Muller. और उसी दिन के सुबह में हम देखते हैं कि जॉर्ज मुलर के उस अनाथालय में वो इतने सारे ब्रेड को लेकर के, एक गाड़ी भर करके ब्रेड को लेकर के आया। मानो You see, the plates were empty, the kitchen was empty, the storerooms were empty, but God brought the bread through the city's biggest baker and gave it to them. और इस बात को देखिए मेरे प्यारों, जिनके उन अनाथालय में उनका किचन खाली था, उनके जो बच्चे खाने के लिए नाश्ते को बैठे थे, उनके प्लेटें खाली थी और उनका स्टोर रूम भी, भंडार गृह भी खाली था, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने उस शहर के सबसे बड़ा जो बेकरी वाले को उनके यहाँ पर लेकर के आया और उनकी जरूरतों को पूरा किया और उनको ब्रेड
भरपूरी के साथ मिल गया। So they received the bread, and the baker went and they closed the door, and they were about to begin to eat. और जैसे ही उस बेकरी वाले ने उनको वह ब्रेड दे करके वो चला गया, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, जैसे ही वो खाने वाले थे। Now the glasses were empty. और उनके जो ग्लास हैं वो खाली थे। Children have to be given something to drink. बच्चों को कुछ तो देना चाहिए उनको पीने के लिए। Again there was another knock at the door. एक बार फिर से दरवाजा किसी ने खटखटाया। This time George Muller himself went and opened the door. इस बार जॉर्ज मुलर स्वयं जाकर के द्वार खोला। There was a man standing at the door, द्वार के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। and he said, "The milk van in which I was coming has broken down on the road in front of your orphanage. I cannot repair it. By the time it gets repaired, I cannot take the milk and go and supply it. The milk will get spoiled. So I want to donate all the milk to you." और उस दिन ऐसा घटित हुआ कि वो उस दूध वाला दूध की गाड़ी लेकर के जा रहा था, और उसने इस प्रकार से कहा कि मैं आपके अनाथालय के सामने से होकर के गुजर रहा था, उसी समय पर मेरी गाड़ी इस तरह से खराब हुई कि मैं उसको सुधरवा नहीं सकता। यदि मैं सुधरवाऊंगा भी तो भी मैं उस समय पर दूध नहीं पहुंचा पाऊंगा, और यदि नहीं पहुंचा पाऊंगा तो दूध खराब हो जाएगा। तो उसने इस प्रकार से कहा कि मैं ये सारा दूध जो है आपको दान में देना चाहता हूं। You see, that day in that orphanage, that huge orphanage, God answered George Muller's prayer and gave him bread muft mein and gave him doodh muft mein. You see how the Lord provided for George Muller. That is what George Muller at this deathbed at 93 years said. The Lord has never failed to supply every need of mine. और इस बात को देखिए मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि उस इतने बड़े अनाथालय में भी, जहां सब कुछ सूना था, खालीपन था, कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया था, वहां पर परमेश्वर ने जॉर्ज मुलर की प्रार्थना को सुन करके उस अनाथालय को, जो खाली हो गया था, किचन खाली हो गया था, उनका भंडार खाली थे, उनकी प्लेटें खाली थी, उनके ग्लास, उनकी प्रार्थना से परमेश्वर ने उसी सुबह में भर दिया और भरपूरी से मुफ्त में भर दिया। मेरे प्यारों, कितनी अद्भुत बात। It is written about George Muller that he took no loans. He did not send any request help to any churches. He did not ask anyone for any funds. All through his life, for all his orphanages, the Lord had meticulously provided for all his orphanages. और मेरे प्यारों, इस बात को देखते हैं, उसकी जो गवाही की जो किताब थी, बायोग्राफी में इस प्रकार से लिखा हुआ था कि उसने कोई लोन नहीं लिया, उसने किसी व्यक्ति से पैसे की रिक्वेस्ट नहीं की, ना ही कोई किसी कलीसियाओं को लेटर में भेजा, और ना ही कोई फंड रेज किया, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि इन सब में भी परमेश्वर, उस 93 वर्ष की उम्र में भी वो मुलर कहता है, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करने में असफल नहीं रहा। What a great testimony, is it not, of George Muller? कितनी अद्भुत गवाही है। You see, that is the testimony of David in verse 15. यही वो गवाही दाऊद की वचन 15 में देखते हैं। You see, verse 15, read it once again, Jitendra. जीतू भाई, आप एक बार फिर से उसको पढ़िएगा, वचन 15। I think so. It's not in the meeting. It's network. वाकी आंखें धर्मियों पर Someone can read. वाकी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। You see, that is David's experience, and I've also given you an illustration through George Muller. Many centuries after David, still that God is the same God. He is our God today. और मेरे प्यारों, इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि जो 15 वचन में दाऊद का अनुभव को हम देखते हैं, उसी परमेश्वर को दाऊद के बाद, कई शताब्दियों के बाद में हम देखते हैं जॉर्ज मुलर का भी मैंने आपको उदाहरण बताया है। वही परमेश्वर है, वही चमत्कार करने वाला है, और वही अनुभव दाऊद का था, वही आज हम देखते हैं जॉर्ज मुलर के जीवन में सफल हुआ,
और हमारे जीवन में भी अवश्य ही सफल होगा। All right, let's read verse 16 and 17 again. 16, 17 वचन फिर से पढ़ लेते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुआई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। Read verse 17 once again, Deepu. 17 एक बार फिर से पढ़ते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। And delivereth them out of all their troubles. यस। All right, now let me give you another illustration. A little boy was eagerly looking forward to a birthday party at his friend's house. एक ऐसा मित्र था जो उनके मित्र के घर पर जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए आया शाम के समय। And this friend's house only a few blocks away, few houses away. और उसका घर जो है कुछ ही दूरी पर था। Maybe it should have taken a few minutes just to go to that house. हो सकता है उसने 2-4 मिनट ही लगे होंगे उसके घर पर पहुंचने में। When the day finally arrived of the birthday party, now in that country there was a strong wind and there was heavy snowing. और उसी दिन उसी राज्य उसी देश में क्या हुआ, जिस दिन उसकी जन्मदिन की पार्टी थी उसी दिन उस राज्य में क्या हुआ, बहुत तेज आंधी और बर्फीली आंधी चली और बर्फ की वर्षा हुई। The road was filled with ice, the sidewalks were filled with ice. It was so difficult to walk and even commute outside the house. और यद्यपि घर में से निकलना भी दूभर हो गया था, मुश्किल हो गया था, चलने में बहुत मुश्किल हो गया था। रोड पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैल गया था। So this little boy's father knew there is a danger there, so he hesitated to allow his son to go to attend the birthday party. और इसलिए उस बच्चे का पिता जानता था कि वो बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए बच्चे को इतनी खतरनाक अवस्था में बाहर भेजने के लिए उसका पिता इच्छुक नहीं था, इसलिए वो असहमत था। But this boy was a small boy. He started crying. He says, "But Daddy, all my other friends will be there. Their parents are allowing them to go. I also want to go. I've been waiting for this, Daddy." He started crying. और बच्चा पिता के सामने इस प्रकार से कह करके रोने लगा कि पिता, पापा, वहां पर मेरे सारे मित्र होंगे, मेरे सारे मित्रों के जो माता पिता उन्होंने तो उन्हें नहीं रोका, और इस दिन के मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आज मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। इस तरह से वो रोने लगा, जिद करने लगा। So the father felt bad, but reluctantly the father said, "Okay, son, you go." और पिता ने बहुत बुरा उसको महसूस हुआ, लेकिन फिर भी तैयार होकर के उसने कहा, ठीक है, तुम चले जाओ। This little boy was surprised that his father allowed to go. So he immediately wore all the clothing he has to wear. He dressed himself up and then he opened the door and he started walking in that snow and in that stormy snow weather. He started walking to go to the houses, go to that house, few houses away. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि जैसे ही उस पिता ने उनसे बोला कि तुम चले जाओ, तो हम देखते हैं कि उस बच्चे ने बड़े ही आश्चर्य हुआ कि पिता ने उसको सहमति दे दी है, लेकिन बड़े उत्साह के साथ में वो बच्चा जल्दी से तैयार हुआ, जो कपड़े से पहनना चाहते थे पहन करके अपने घर का द्वार खोल करके वो उस घर में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए उस बर्फीले रास्ते से होकर के चलने लगा। You see, because of the snow, the visibility was very low. और हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा रोड पर जो बर्फ जमी हुई थी। No, because of that, the visibility, what he could not see very far, the visibility was very low. और उसी के चलते हम देखते हैं कि वो ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा था। Where it should have taken him only few minutes to go to his friend's house, it took more than half an hour for him to reach the friend's house. और यद्यपि उसको कुछ ही मिनट लगते वहां पर पहुंचने में, लेकिन वहां वो देख नहीं पा रहा था, इसीलिए उसको आधा घंटा से ज्यादा लग गया पहुंचने में। When he reached the friend's house, the door was closed, so he rang the bell. और जैसे ही उस घर में पहुंचता है और वहां उस घर का दरवाजा बंद था, as he was waiting for the door to be opened, he turned back and looked at the pathway in which he had come. और जैसे ही वो
उस घंटी को बजाया और इंतजार कर रहा था कि कोई दोबारा करके खोलेगा, लेकिन वहीं खड़े होकर के जिस रास्ते से होकर के वो आया उसको उसने दोबारा देखा मुड़ करके। When he turned and looked, he saw one shadow of a shadow of a figure going far away. और जैसे ही उसने जब लौट के पीछे मुड़ करके देखा तो एक छाया है जो वहां से जा रही थी। You know that whose shadow that figure was? It was his father. His father had followed his son's every footstep to make sure that he arrived safely. और वो छाया जो उसने देखी वो कोई और नहीं वरन वो उसका पिता था, और उसके पिता उस बच्चे के पीछे इस चीज को सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरा बेटा सही जगह पर उस सही घर में पहुंचा या नहीं पहुंचा। That is the meaning of verse 17, brothers and sisters. यही मतलब है उस वचन 17 का, मेरे प्रिय भाइयों बहनों। The righteous cry and the Lord heareth and delivereth them out of all their troubles. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। How this little boy's father was behind him, the son did not know that his father was following, but at a distance the father was following just to make sure the son reaches the friend's house without being affected by any danger. That is how our Father takes care of us, brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, देखिए कितनी अद्भुत बात है कि वो बच्चे का पिता इस चीज को सुनिश्चित कर देना चाहता। जैसे ही वो बच्चा रो रहा था, पिता तैयार हो गया, ठीक है बेटा तुम जाओ, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर निकला तो पिता दूर से उस बच्चे के पीछे पीछे चला जा रहा था। इस बात को देखना चाहता था और सुनिश्चित कर देना चाहता था कि वो वहां तक पहुंचेगा या नहीं। इसी तरह से मेरे प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर भी हमारी जब हम उसकी ओर दुहाई देते हैं तब वो सहमति देता है और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में क्या करता है, हमें हर विपत्ति से छुड़ाता है। Right. Now verse 16, if you read verse 16, let's read verse 16. 16 यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। You see, the Lord's face is against means the Lord is angry. हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता। विमुख मतलब परमेश्वर क्या है, क्रोध है। Which means he is looking at people that are his enemies, meaning if anyone is your enemy, he is the Lord's enemy. और आप इस बात को देखिएगा कि जो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं परमेश्वर उनको देखता है, और अगर वो तुम्हारे दुश्मन, इसका मतलब वो परमेश्वर के भी दुश्मन हैं, शत्रु And he हैं। is very angry at those people. और उन लोगों पर परमेश्वर क्या है, बहुत ही ज्यादा क्रोधित रहता, विमुख रहता है उनके। We read in verse 15 that the Lord God has, he can see and he can hear the righteous. हमने इस प्रकार से पढ़ा हुआ है वचन 15 में कि वो परमेश्वर जो है उनको धर्मियों को क्या देख सकता है और उनकी सुन सकता है दुहाई को। Sometimes, dear believers, we sometimes feel that we have done a sin, we have done something wrong against God. How will God take care of me? But dear believers, we are made righteous not by our good works, but because God has forgiven me. और इस बात को सुनिश्चित करना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने कोई गलती कर दी, हमने कोई पाप कर दिया, परमेश्वर कैसे मेरी रक्षा करेगा, परमेश्वर कैसे मेरी सुनेगा। लेकिन हमें इस चीज को सुनिश्चित करना है प्यारो कि परमेश्वर मुझे और आपको बचाने वाला है। All right, let's read verse 18. वचन 18 हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिसे हुआ का उद्धार करता है। All right. All these verses are very simple verses. We understand them very well. But I wish to illustrate all of them because that is how we understand the deeper meaning of that. और मैं समझता हूँ ये वचन बड़े ही सरल लगते हैं, लेकिन
मैं इच्छा रखता हूं कि उनको जो है उदाहरण के साथ व्याख्या करके हम लोग इसका देखें, ताकि हम इस तरह से सही रीति से उन वचनों का मतलब को समझ पाएं। You see, there was a construction crew that was constructing a building in an area which had a lot of trees. So they had to cut off the trees so that they could construct a building. और एक मकान को इस प्रकार से बनाने का इच्छा था, लेकिन जहां पर उस मकान को बनना चाहिए था वहां पर बहुत अधिक पेड़ हुए लगे हुए थे, इसलिए यदि उनको वहां घर बनाना है तो वहां पर उन पेड़ों को काटना होगा। So one of the superintendent of the construction site of the company, he noticed that one tree had a nest of birds who are very small. They were not able to fly. So he marked that tree and told his team, don't cut that tree. और वहां पर हम क्या देखते हैं कि जो वहां का जो व्यक्ति था, उस कंपनी का जो घर बनाने वाले थे, वो व्यक्ति जब वहां का निरीक्षण करने के लिए आया, निरीक्षण के दौरान उसने एक चीज पर ध्यान उसका गया कि एक पेड़ ऐसा है जिस पेड़ पर घोंसला है और उसमें नए जन्मे हुए चूजे हैं, और वो चूजे अभी उड़ने की अवस्था में नहीं, इसलिए उसने उस पेड़ पर उसको चिन्हित किया और काटने वालों से कहा कि इस पेड़ को नहीं काटना। After a few weeks, the superintendent came back to the same tree. कुछ हफ्तों के बाद में ये जो व्यक्ति था वहां पर पुनः उसी पेड़ के पास वापस आता है। This tree was a very tall tree, so he got into a truck which has a bucket, like, the electrical officials, when they have to go to a post, what do? They get into a vehicle which has got like a bucket, and that bucket will, like a telescope, will take him to that height where they can repair it. No, so he got into a bucket like that in a truck and went to the top of the tree to see what happened to the nest. और इस बात को हम देखते हैं, वो व्यक्ति जब वापस आया उसी पेड़ के पास में, उस पेड़ पर वो बहुत लंबा ऊंचा पेड़ था, इसलिए वहां पर चढ़ नहीं सकता था। वो जो व्यक्ति था वो वहां पर एक ट्रक में जो मशीन लगी हुई रहती है, जिसमें एक झोली नुमा लगी रहती है, जिस झोली में जिसमें बाल्टी टाइप का रहता है, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। वो व्यक्ति उसमें खड़ा होकर के फिर उस ट्रक की सहायता से वो उस पेड़ की ऊंचाई तक गया, उस जहां वो घोंसला लगा हुआ था, और देखना चाहता था कि उस घोंसले में उन चूजों के साथ क्या घटना घटित हुई He है। went up to the top of the tree. He saw the nest. The nest was empty because those small fledglings, the small little birds had grown. They had learned how to fly and they had flown away. और उसने क्या देखा, जैसे ही वहां पर पहुंचा उसने देखा कि वो जो घोंसला है वो खाली है, क्योंकि जो छोटे छोटे चूजे थे उनके पंख निकल आए थे और उन्होंने उड़ना सीख लिया था, इसलिए वो उड़ करके चले गए थे और वो घोंसला खाली था। So the superintendent now was satisfied. He asked his people, cut down the tree now. और उसके बाद वो व्यक्ति संतुष्ट होकर के उनसे लोगों से कहा कि सारे पेड़ काट दो, इसको भी काट दो साथ में। The tree, once they cut it, it's a huge tree. It came crashing to the ground. और वो एक बहुत ही विशाल पेड़ था, और जैसे ही उसको उन्होंने काटा उस पेड़ को, तो जमीन पर जैसे ही वो गिरा तो बहुत ही चरचराने की आवाज आई। And when the tree fell to the ground, the nest also scattered. जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरा उसी तरह से वो घोंसला भी फैल गया जमीन पर। When the nest scattered, the mother bird or the father bird had used some paper underneath the nest to cover the nest. और जो उस उन चूजों के जो माता पक्षी थे और पिता पक्षी थे, उन्होंने उस घोंसले को जिसको बनाया था उसके नीचे पेपर नुमा लगाया हुआ था, ताकि उस घोंसले को जो संरक्षण कर सके। And that paper was a Sunday school pamphlet, or it was a Sunday school notice or a Sunday school paper. और उस पेपर को जिसको वो पक्षी उड़ा करके लेकर के आए थे, वो संडे स्कूल का जिसमें वो बच्चन छपे हुए रहते, वो वही पेपर था। And that paper, which is a scrap paper, there were these few words written on that paper. और उसी पेपर पर यही कुछ वचन लिखे हुए थे। You know what were the words written on that paper?
he careth for you. उस वचन पे पता है क्या लिखा हुआ, उस पेपर पे क्या लिखा हुआ था? वो तेरी रक्षा करता है, वो तेरी सुनता है। You see, that is how those birds in that nest were cared for by the God who created them, is it not? और मेरे प्यारो देखिए, वो वचन के अनुसार हम क्या देखते हैं, वो पक्षी भी उस परमेश्वर सृष्टिकर्ता के द्वारा, उसके द्वारा संरक्षित किए गए, बचाए गए हैं। You see, now in verse 18 that we read just now, there is this word called a broken heart. वहां पर वचन 18 में हमने क्या पढ़ा है कि टूटे मन वालों के समीप रहता है यहोवा। A broken heart means what? टूटे मन वालों का मतलब क्या है? Our mind is hurting. Some incident has happened. Something has happened in my life. My mind is hurting and I'm very, very sad. That is the meaning of a broken heart. और टूटे हुए मन का मतलब यह है कि मेरे मन में बहुत खेद है, मुझे बहुत ही ज्यादा जो है बेचैनी है, मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता घटित हो रही है, और मुझे बहुत ही ज्यादा इस प्रकार का मन जो है उदासी से भरा हुआ है। वही टूटे हुए मन का नमूना है, उदाहरण है। And remember, dear believers, when you have a broken heart, remember that God is near such people who are hurting in their minds, who are very, very sad, and who are of a broken heart. That's what the verse says, is it not? इस बात को याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी व्यक्ति उसके जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबत से टूटा हुआ फील करते हैं, महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से वो टूटा हुआ महसूस करते हैं, इस बात को याद रखिए, स्मरण रखिए, विश्वास कीजिए, प्रभु उस अवस्था में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। You see, brothers and sisters, when you are sad, when your heart is broken, when you're in sorrow, you feel like sharing with someone, is it not? But remember, God is standing by your side. He wants to share your broken heart. That is what verse 18 is saying. और मेरे प्यारो इस बात को देखिए, ऐसा क्या होता है कभी कभी जब हम लोग ज्यादा ज्यादा मन टूटा हुआ रहता है, उदास रहता है, क्या करते हैं हम एक दूसरे के साथ, किसी दूसरे के साथ क्या साझा करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं। मेरे प्यार उसी तरह से मेरे प्रभु, यहाँ पर वचन 18 का मतलब क्या है कि प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा टूटे हुए मन वालों के पास व समीप रहता है। इसका मतलब है वो हमारे साथ, हम उसके साथ जो बातें साझा कर सकते हैं। You see, God knows when your heart is broken, and He is by your side to share in your sorrow, to share when you are hurting, to share when you are sad. और इस बात को देखिए मेरे प्यारो, जब तुम दुखी हो, परमेश्वर आपके साथ सहभागी है। जब आप जो है निराश हो, आप का मन टूटा हुआ है, परमेश्वर वहां पर आपके समीप है। जब आप निराशा महसूस करते हैं, जब आप दुखी महसूस करते, मन में उदासपन है, टूटा हुआ है, याद रखिए परमेश्वर आपके समीप है। Let's read verse 19 and 20. 19 और 20 आयत को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Can I read? Read. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। Thank you. You see, verse 19 says, many are the afflictions of the righteous. यहाँ पर वचन 9 का कहता है, 19 कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। You see, life is often very hard for God's people. परमेश्वर के लोगों के लिए जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। God does not make life easy for believers. परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए उनका जीवन आसान नहीं बनाया है। But God gives them help. लेकिन परमेश्वर उनकी सहायता करता है। That is what we read in verse 19. The second half reads, but the Lord delivereth him out of them all, meaning the Lord has given a way of escape for those who are suffering, who are going through difficulties. और इस बात को देखिए मेरे प्यारे, वचन 19 का
दूसरा भाग क्या कहता है कि जो लोग कष्ट, मुसीबत, परेशानियों से, विपत्तियों से होकर के जूझ रहे हैं, वचन दूसरा कहता है परंतु यहोवा उनको सब से क्या करेगा? मुक्त करेगा। वो परमेश्वर की ओर से उन सब के लिए क्या आएगी? सहायता मिलेगी। यस अंकल, कैन यू हियर मी? हेलो उनका नेट चिपक हेलो गया, अंकल, आई। अच्छा अंकल जी का नेट चिपक गया। मेरी आवाज तो आ रही है? आ रही है, बढ़िया क्लियर आ रही है। अच्छा अंकल जी अंकल निकल भी गए, अभी आएंगे वो, शायद नेट प्रॉब्लम। नेट प्रॉब्लम है। आप कैमरा खोल के बैठते ना, मेरा पूरा खत्म हो गया, आप थोड़ा सा बचा है बस।